وفاقی کابینہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے مسودے کی منظوری دے دی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں 7 سے 10% اضافے کا امکان۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں کہا، بجٹ کو بہت محنت اور خلوص سے تیار کیا ہے۔ پاکستان کی عظیم قوم کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی گئی۔ مالی سال 2026-27 کا بجٹ کچھ دیر بعد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اراکین اسمبلی پہنچ گئے، بجٹ کاپیز بھی پارلیمنٹ پہنچا دی گئی۔ بجٹ کا حجم 17,500 ارب روپے ہونے کا امکان۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے ہوگا۔ قرضوں پر سود ادا کرنے کے لیے 7,824 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا امکان۔ برآمدات کا ہدف 32.8 ارب ڈالر اور درآمدات کا ہدف 70 ارب ڈالر مقرر کیا جائے گا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا، سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 7 سے 10% اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، جب تک تمام صوبوں سے NFC کا کچھ حصہ وفاق کو نہیں ملے گا، وفاق دباؤ میں رہے گا۔ جام کمال نے کہا، حکومت نے ہمیشہ عوامی مفاد میں IMF سے کچھ باتیں منوائی ہیں۔ تمام ممالک معاشی مشکلات دیکھ رہے ہیں۔ بجٹ کے موقع پر اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا احتجاج۔ ملازمین کا پاک سیکریٹریٹ چوک سے پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب مارچ۔ پولیس کی ملازمین کو روکنے کی کوشش، پولیس نے خاردار تارے لگا کر راستے بند کر دیے۔ ملازمین اور اہلکاروں کے درمیان ہاتھا پائی۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,000 ارب روپے کی تجویز۔ وفاقی وزارتوں کے لیے 682 ارب روپے سے زائد ترقیاتی فنڈز مختص۔ صوبوں اور خصوصی علاقوں کے لیے 233 ارب مختص۔ سم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے سے زائد ترقیاتی فنڈز تجویز۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 85 ارب روپے رکھے گئے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے 224 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ آبی وسائل ڈویژن کے لیے 103 ارب روپے رکھے گئے۔ پاور ڈویژن کے لیے 88 ارب اور ریلوے ڈویژن کے لیے 40 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز۔ کابینہ ڈویژن کے لیے 64 ارب اور داخلہ ڈویژن کے لیے 21 ارب روپے مختص۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 46 ارب۔ وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ڈویژن کے لیے 36 ارب روپے کے فنڈز تجویز۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹیلی کام ڈویژن کے لیے 19.5 ارب روپے تجویز۔ صحت کے لیے 16 ارب اور سی پیک 2 کی نئی اسکیمز کے لیے 1 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ بجٹ میں کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہ کرنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں پہلے سے جاری ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے بجٹ مختص کیے جانے کا امکان۔ سابق فاٹا کا ٹیکس استثناء ختم کیے جانے کا امکان۔ IMF نے جائیداد کی خرید و فروخت پر فائلر کے لیے ٹیکس میں کمی پر اتفاق کر لیا۔ ریٹیلرز کے لیے نئے ٹیکس آپریٹنگ ماڈل کا اعلان متوقع۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو 50 ارب روپے ٹیکس ریلیف پیکج ملنے کا امکان۔ 1,83,000 روپے سے زائد ماہانہ آمدن والوں کو ریلیف ملنے کا امکان۔ میک اپ کا سامان سستا ہوگا۔ بجٹ میں آئی لائنر اور مسکارے پر امپورٹڈ ڈیوٹی میں 2 سے 5% تک کٹوتی کا امکان۔ جوتوں کپڑوں پر بھی ڈیوٹی کم ہونے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے لیے GDP کی شرح 4% مقرر۔ مہنگائی کی شرح 8.2% رہے گی۔ ذرائع کے مطابق زرعی شعبے کا ہدف 3.8% اور صنعت کا ہدف 4.5% رکھا گیا۔ سرمایہ کاری کا ہدف GDP کا 15% مقرر۔ مینوفیکچرنگ کی ترقی کا ہدف 5.7% رکھا گیا۔ بڑی صنعتوں کی پیداوار کا ہدف 5% مقرر۔ چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوئے عوام کی جو ہے وہ سہولت کا خیال رکھیں۔ پاکستان میں مہنگائی اتنی ہو گئی، پہلے تھا پیٹرول، یہ گیس CNG، یہ سب چیزیں سستی تھی، اب ہو گیا 400 روپیہ۔ جو تھوڑی بہت سیلری بڑھے گی وہ پھر ہم ٹیکسز میں دے رہے ہوں گے، تو بجٹ جو آ رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی از ایکول ٹو ٹیکسز۔ کیا سستا ہوگا، کیا مہنگا، تنخواہ کتنی بڑھے گی، ٹیکس کتنا لگے گا، شہریوں کی امیدیں، توقعات اور خدشات۔
महंगाई से परेशान शहरियों ने कहा, अगर सिर्फ पेट्रोल पर आए टैक्स कम कर दिया जाए तो महंगाई कम हो जाएगी। दीगर टैक्सेस भी कम करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में वफ्द ने बजट तजावीज़ पेश की। कराची और हैदराबाद के लिए खुसूसी पैकेज मांग लिया। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक आईनी तरमीम जल्द लाने का भी मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम से मुतालिक मुतालबे से इत्तफाक किया। अपोजिशन का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का फैसला। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने बजट को मुस्तरद कर दिया। ECC ने खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी की मंजूरी दे दी। वजारत फूड सिक्योरिटी के खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी के इकदामात मुकम्मल। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को गंदम साल के आगाज में मुकर्रर सरकारी कीमत पर फराहम की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का धमकी के बाद ईरान पर हमले रोकने और मुआहदा करने का ऐलान। कहा कि ईरान से मुतालिक मुआहदे के दस्तावेजात आखिरी मराहिल में हैं। अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकूंगा। जेडी वेंस तकरीब में शरीक होंगे। मुआहदे पर दस्तखत के बाद अब होर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान का कहना है कि मुआहदे से मुतालिक मामलात महज क्यास आराइयां हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि अभी तक किसी चीज़ को हतमी शक्ल नहीं दी गई। समझौते से मुतालिक ईरान हतमी फैसले तक नहीं पहुंचा। मुसव्विदे का बड़ा हिस्सा हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका था, लेकिन अमेरिका मौक़िफ़ बदलता रहा है। कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका के इक़दामात सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की ताज़ा पेशरफ पर तबादला ख्याल। दीवान अमीरी के मुताबिक ट्रंप ने तस्दीक की है कि तय पाने वाली मुफाहमत को तमाम फरीकैन की हिमायत हासिल है। मुआहदे पर दस्तखत के इंतजामात की तैयारी के लिए कोशिशें हतमी मराहिल में हैं। फुटबॉल शायकीन का इंतजार खत्म। फीफा वर्ल्ड कप का मेला सज गया। मैक्सिको में वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। शकीरा समेत दीगर फनकारों की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। वर्ल्ड कप में शरीक तमाम ममालिक के झंडे मैदान में लाए गए। अदाकारा सलमा हाइक फीफा सदर के साथ ट्रॉफी मैदान में लाई। फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेजबान मैक्सिको की जीत जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मैक्सिको की फतह पर शायकीन का जश्न। वर्ल्ड कप का पहला मैच देखने के लिए स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा रहा। बिलावल भुट्टो भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गए। ब्राजील की जर्सी पहन ली। कराची के शहरियों को मैचेस देखने की भी दावत। कहा कि लियारी स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन लगाई गई। शहरी आएं और मैचेस का लुत्फ उठाएं। फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए 14 अरब रुपए का इनाम। फीफा ने इवेंट के लिए 182 अरब रुपए की बड़ी इनामी रकम मुख्तस कर दी। इवेंट पर मजमूई तौर पर 242 अरब रुपए खर्च होंगे। मरी एक्सप्रेस वे हादसे में मुल्तान के काशिफ की दुनिया उजड़ गई। 5 बच्चों एलिया और वालिदा की मौत पर गम से निढाल। हादसे में काशिफ की मुमानी और 2 खालाएं भी नाबहक हुई। 10 अफराद के इंतकाल पर मुल्तान की फजा सोगवार। पेट्रोल और डीजल पर लेवी से एक साल में 1205 अरब रुपए आमदन। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक पिछले साल की निस्बत 371 अरब रुपए ज़ायद इकट्ठे हुए। माली साल 2025 में 834 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सोलर के रुझान में इजाफा। नेट मीटरिंग की कैपेसिटी में 4506 मेगावाट का इजाफा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक नेट मीटरिंग 2813 से बढ़कर 7319 मेगावाट हो गई। मुल्क में बिजली की नस्ब शुदा सलाहियत 49,651 मेगावाट।
मुल्क में टैक्स रेवेन्यू में 10.7% इजाफा, हदफ हासिल ना हो सका। रवा माली साल टोटल रेवेन्यू 14,799 अरब रुपए, टैक्स आमदन बढ़कर 10,166 अरब रुपए हो गई। नॉन टैक्स आमदन इजाफे से 4,632 अरब रुपए रिकॉर्ड। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक FBR की टैक्स वसूली 9,305 अरब रुपए हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी कमीशन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुशावरती मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी वफ्द में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जील इनाम मेमन समेत दीगर शामिल। नून लीग के वफ्द में वफाकी वजीर अमीर मकाम हाफिज हफीजुर रहमान मौजूद। हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज तब्दील करने की कोशिश का इल्ज़ाम, कहा कि वफाकी वज़रा 15 जून तक नंबर तब्दील होने की डेडलाइन दे रहे हैं। हुकूमती वज़रा की पॉलिसी वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। हसन मुर्तज़ा बोले कि गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद जीतने वालों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक और अहम संगे मील, पहली अंगूर क्लास आबदोज चीन से कराची पहुंच गई। अंगूर कौमी अज़्म और दिफाई सलाहियत का इस्तिआरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज में मजबूत दिफाई शराकत दारी को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन और बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद के बाद लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कारोबारी और खातेकार में 1 घंटा तोसी। किरियाना ग्रोसरी स्टोर्स को रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 83,285 अरब रुपए हो गया। मकामी कर्ज 57,566 अरब रुपए। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक बैरूनी कर्ज की मालियत 25,720 अरब रुपए है। कर्ज की शरह नमू 3.4% रिकॉर्ड। 2025 में 7,62,499 नौजवान मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क गए, तकरीबन 70% सऊदी अरब में गए। तादाद 5,30,256। कतर में 68,376 अफराद ने रोजगार हासिल किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में साल 2025 में 52,664 पाकिस्तानी रोजगार के लिए गए। 2024 में यह तादाद 64,130 थी। ओमान और बरतानिया में रजिस्टर्ड पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद में कमी। सैलाब के बावजूद ज़रई शोबे में 2.89% तरक्की रिकॉर्ड। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक गन्ने की पैदावार में सबसे ज़्यादा 6.2% इजाफा हुआ। गंदम और चावल की पैदावार में भी इजाफा रिकॉर्ड। बिजली, गैस, वाटर सप्लाई में ग्रोथ मनफी 10.63% रही। मुल्क का तिजारती खसारा बढ़कर 27.9 अरब डॉलर हो गया। रवा माली साल करंट अकाउंट $72 बिलियन के सरप्लस में रहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र बढ़कर 30.3 अरब डॉलर हो गई। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्की बरामदात में 8% की कमी देखी गई। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 21.8 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पाकिस्तान की मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुंच गया। फीकस आमदन बढ़कर 1,901 डॉलर हो गई। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में शरह ख्वानगी बढ़कर 63% हो गई। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद 38% से कम होकर 28% रह गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2,000 अरब रुपए से जायद का बजट तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 50 अरब, अस्पतालों के अदवियात के लिए 15 अरब रुपए रखने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से 1,671 अरब रुपए से जायद मिलने का इम्कान। कराची में मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चोरी और छीने गई वारदातों में कमी। AVLC हुकाम ने 5 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी।
गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गाड़ियां चोरी और छीनने की 161 वारदातें कम हुई। मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की 5000 के करीब वारदातें कम हुई। मुल्क में मवेशियों की तादाद में इजाफा, भैंसों की तादाद में एक साल में 14 लाख का इजाफा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक बकरियां 24 लाख और भेड़ें 4 लाख बढ़ गईं। ऊंट की तादाद बरकरार रही। गधे भी 60 लाख से बढ़कर 62 लाख हो गए। खच्चर और घोड़ों की तादाद बरकरार। 2025 पाकिस्तान की तारीख का दूसरा गर्म तरीन साल रहा। औसत दर्जा हरारत 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को 822 अरब रुपए नुकसान हुआ।